But in 2021, July 25, I contemplated suicide. I went and jumped in a dam because I wrote a letter to my dad with all the details of यहाँ म्यूचुअल फंड है, मेरे जाने के बाद निकाल लीजिएगा. They were able to track me and they rescued me from there. Again, commit suicide multiple times. I had 100 BP का गोली. I tried hangman rope. Almost 6 महीने तक मैंने 100 से ऊपर बार ट्राई किया. I went on a 100 days India tour. मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए. मेरा कार toppled 60-70 डिग्री ऐसे करके. I lost my ring finger. I was so shocked. मुंबई और दिल्ली में एक नया कल्चर आ रहा है. So I think we're going back to Gurukul. Welcome back to the Last Laugh podcast. Everybody asked me for one thing. यश, कोई ऐसे बंदे को लेके आ जो LinkedIn में एक्सपर्ट हो. And every business or every lead which I'm getting is actually wanting to grow on Instagram, LinkedIn and many other platforms. And that is why मैं आपके सामने आज ऐसे गेस्ट को लेके आ रहा हूं जो सिर्फ LinkedIn के एक्सपर्ट नहीं बट एक पूरी एजेंसी चलाते हैं on revamping the brand. Yes guys, the name is Revamp. उनकी कंपनी का नाम The Revamp है. Out of all the guests I have invited, ये particular person मुझे मेरे जुड़वा भाई जैसे लग रहे हैं. He also started from a corporate journey, left his high paid job and he's decided to be an entrepreneur. When I heard a story on the podcast, मैं literally shock हो चुका हूं because someone जो death के इतने करीब थे और multiple suicide attempts के बाद today is running a 7-figure agency. Let me introduce you to Yogesh Agarwal, who is just not a LinkedIn wizard but also 80 times global speaker across the country and across the world, जिसने बायजूस छोड़कर अपनी खुद की एजेंसी चालू की और आज मिलियन लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं. So, why are you waiting? No, you need to wait because you need to subscribe me. I see that 90% of the people who are viewing my podcast are actually not subscribing it. Trust me, आप मेरा कोई भी एपिसोड देखोगे, आपको value add content मिलेगा. So why are you waiting? Just subscribe me on YouTube and follow me on Instagram so that you really get value added content. तो LinkedIn सीखना है? Watch this episode. Enjoy the show. Okay, so thank you so much everybody to set this up and thank you so much to accept the invite. Let's start. I mean, एकदम candidly I am asking you कि revamp क्या है and revamp में होता क्या है, what exactly you do and you know tell me about your story. So यार देख, मेरे को लगता है कि बहुत सारे लोग तो जानते नहीं है what is revamp as a word. So revamp is basically again when you restructure something, renovate, that's what revamping is. Okay. And why have I kept the word revamp? So हम लोग हमेशा ट्रेंड की बात करते हैं कि what is the trend going on, ट्रेंड के हिसाब से चलो. So if you see majority, अभी तुम पेप्सी का लोगो देखो, अभी तुम जॉनसन एंड जॉनसन का लोगो देखो, everybody is redesigning their logo. So if you go back in history, there was a time when serif font used to be a font which used to be used a lot. Yeah. Slowly and steadily थोड़ा सा चेंज आया. अभी लोग ने फिर उसके बाद sans serif font यूज करना शुरू किया. Yeah. Then now people are using slab serif font. Okay. So the difference that is coming every single day, that's probably because अभी जो generation है, we have been from generation X, then Y, which is millennial, and now Gen Z. Okay. Every generation is different और हमको अपने ब्रांड को उस हिसाब से डिज़ाइन करना होता है. So every company is revamping right now. Okay. Be it their website, be it their logo, be it their pitch decks and everything. And that's where we found a huge scope. And that's why it's a Revamp Tribe. Why it's a tribe? Because we are a tribe of the most creative people out there. So Wow. that's why it's a Revamp Tribe. And again, I was searching for the name for 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Then I realized I've been using this word every single day. हर दिन यार मैं LinkedIn पे इस word के बारे में बात कर रहा हूँ. Why not keep Revamp Tribe? Then I found that there are a lot of companies with the name Revamp, but again, Revamp Tribe was not there. Okay. So गया, book कर लिया, and then Revamp Tribe happens. So क्या करते हैं हम लोग is very simple. We are basically a rebranding agency. Okay. हम rebrand करते हैं, be it personal brand, be it business brand. हमारा एक ही टारगेट है कि आपकी करंट पोजीशनिंग जो है और आप जो पोजीशन रीच करना चाहते हो, we decrease the gap and we make you reach that particular positioning. Because सब पोजीशनिंग का खेल है. आज जब मैं आपके सामने कोई भी नाम लेता हूँ, राज शिमानी, रणवीर अलाबादिया, आपके दिमाग में वो पोजीशनिंग आती है कि हाँ भाई, they have done a massive job in the podcast space. True. बट अगर आप कोई और, अगेन देयर विल बी अ लॉट ऑफ पॉडकास्टर जिसको हम नहीं जानते होंगे, इट्स बिकॉज उनकी पोजिशनिंग अभी वहाँ तक नहीं आ पाई है. इट्स नॉट दैट वो अच्छे पॉडकास्टर नहीं है. वेरी ब्यूटीफुल लाइन सेड बाय आई गेस राज ओनली
कि you don't have to be the best in the industry to win. Actually, you have to be the best known in the industry to win. So that's what I believe in. That's what Revamp is all about. We revamp it for the personal brands, the business brands, and primarily on LinkedIn, we are dominating right now. Wow, Yes. that's amazing. So you said about Raj, right? So and you talked about positioning. मेरे हिसाब से positioning is really very important. And as a podcaster myself, I was talking to my YouTube guy, yesterday only, and we were discussing कि positioning कैसे जा रही है. And he asked me 2 questions. यश, तुझे content creator बनना है कि तुझे business coach बनना है? Amazing question. You know why? Because till now I was thinking that I am doing well and things are going well, but this question is actually very relevant to me because now my thinking pattern is going to change, right? Because I don't want to be a wannabe content creator. I want to be exactly a business coach because my experiences are towards businesses and I've scaled businesses before. So and you being the rebranding agency, definitely I want to know from you कि अगर if you want to revamp me, right? Currently मेरी positioning जा रही है as a content creator. अगर मुझे business coach की तरह, जैसे कि the difference between maybe a content creator and Raj Shamani, a content creator maybe and Neil, right? The positioning की फर्क है. तो ये positioning I'm giving it to you, let's say like that. Give me like 2 ways that you would like to position me as a business coach. ग्रेट क्वेश्चन. सो देखो यश, सबसे पहले ये बात है कि एक एग्जाम्पल ले लेते. 2 बड़े पॉडकास्ट है. हम बात करते रणवीर की और हम बात करते राज शिमानी की. ठीक है. व्हेन यू थिंक राज शिमानी, यू थिंक बिजनेस पॉडकास्ट, राइट? वो बोलता भी है कि दिस इज द नंबर 1 बिजनेस पॉडकास्ट आउट देयर. इस तरीके से अपने आप को पोजीशन करता है. क्यों? बिकॉज द ऑडियंस, रादर द गेस्ट ही इज कॉलिंग, वो सारे बिजनेस में या तो महारत हासिल करके रखे, वो वैसे ही गेस्ट को बुलाता है और बिजनेस की बातें करता है प्राइमरीली, राइट? Mostly when, matlab, again, even if he's discussing about hair or something of that sort also, he makes sure that बाद में उसका business angle वो दिखाता है. Now talk about Ranveer. He mostly has become a very spiritual guy. So he talks more deep into things, right? Yeah. So he's mostly into the content creator zone, जहाँ पर वो deeply चीज़ों को explore करना चाहता है. ये difference तुम किसी से पूछ लो. ये this is called the brand audit. You go to maybe Marine and you ask कि जब बिजनेस पॉडकास्ट सोचते हो तो रणवीर का दिमाग में नाम आता है या राज का, तो लोग बोलेंगे राज का. दैट्स बिकॉज ही इज पोजीशन्ड हिमसेल्फ. सेम थिंग व्हेन इट गोज फॉर यू. आई बिलीव इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस का एंगल जब तुम घुसाने लग जाओगे हर पर्टिकुलर पॉडकास्ट पे, उसके बारे में डीप डाइव करके बात करोगे. हर बार लोगों को तुम्हारी एक वीडियो देख के बिजनेस के बारे में कुछ एक नया लेसन मिलेगा. दैट्स वेयर द पोजीशनिंग विल चेंज. And I believe more than a business coach, you're an entrepreneur as well. True. You're someone who's an investor. Yeah. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आज के वक्त में this is what you're doing, a kind of content marketing for yourself. किसके साथ बैठते हो उससे तुम्हारी अथॉरिटी डिसाइड होती है. सोच के Very देखो. well said. कल को so there's a person, I'll not take the name right now, जिससे मैंने पब्लिक स्पीकिंग का you can say एक कोर्स लिया था. I started that course वगैरह. So now when he came in the very first session, उसने अपनी फोटो दिखाई एंथनी रॉबिन्स के साथ, which we generally known as Tony Robbins. Now अभी तक मेरे को लग रहा था ये बहुत ही नॉर्मल इंसान है जो हमको पढ़ाने वाला है. Okay. As soon as he showed me that picture, मेरे दिमाग में उसकी पोजिशनिंग चेंज हो गई. I became more concentrated कि हाँ इसकी बात को सुनना चाहिए. That's what positioning is all about. इसको हम ये कह सकते हैं कि जब हम लिंक्डइन पे भी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं या कहीं भी ब्रांड बिल्डिंग करते हैं, ये आप क्यों लगता है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स है ये बड़े बड़े लोगों के साथ फोटो खिंचा के दिखाते हैं? एक छोटा टेक क्रिएटर क्यों टेक्निकल गुरु के साथ फोटो खिंचा के दिखाता है? ही इज ट्राइंग टू शो कि मेरा रीच है यहाँ तक, मैं एक्सेस कर सकता हूँ टेक्निकल गुरु जी को. सो उसकी पोजिशनिंग बढ़ जाती है वहाँ से. सो फॉर पोजिशनिंग यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस पोजिशनिंग बनाने के लिए बिजनेस के बारे में बात करो. साथ ही साथ मेरे को लगता है कि जो गेस्ट बुलाओ उनको बिजनेस की सेंस होनी चाहिए और बिजनेस से एसोसिएटेड होने चाहिए. अगर कल को सिर्फ कंटेंट क्रिएटर्स बुलाने लग जाओगे, सो अगेन लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये थीम कहाँ जा रहा है. Got it. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से. दिस विल Makes sense. really make the difference. So from today, team, we have to just call all the entrepreneurs and investors in house. Go for it. But yeah, thank you so much for that. But why I came to this conclusion,
अब YouTube, let's say like that, right? YouTube is a very, I would say, funny place for me because business podcast को views कम मिलते हैं. Okay. And if you see, there are podcasts which are entertaining, right? There are things which are very entertaining, and people obviously watch that more, right? And this is where, you know, the content creators, and I have seen that there's a pattern, even Raj, right? After 2-3 podcasts of business, there is one entertainment section. So there is a pattern which we can see and observe. And this is where, you know, you need to come to that place, and you rightly said कि आप जिसके साथ बैठते हो बहुत important है. Correct. Now Raj is sitting with all the entrepreneurs, business owners, you can say investors, angel investors, whatever. That's why his positioning is going to be towards, you know, somebody who you can look up to, कि इसे ये उम्र में business बना दिया और उखाड़ दिया. Same way, Ranveer is where it goes towards Monk Entertainment is also about entertainment, right? So I believe that his positioning is around the people who is obviously into entertainment. So Ranveer has multiple business. Yeah. I know a couple of people in Ranveer's team as well. Again, Manish has played a very important role. जो कि again in various content creators बोला जाता है कि exactly अगर आप मनीष को देखो तो जो स्टॉक में भी काफ़ी अच्छा एक रोल रखते हैं. तो आई गेस उनको गॉडफादर बोला जाता है कंटेंट क्रिएटर इंडस्ट्री में. इन केस के किसी को समझ नहीं आ रहा है, उनको जितना नॉलेज है इन डेप्थ, अब तो रणवीर को बोला जाता है सबसे ज़्यादा यूट्यूब का नॉलेज है, नो डाउट. अगर यू आस्क यूट्यूब का इनसाइट्स किसको सबसे ज़्यादा है तो डेफिनेटली रणवीर को है. बट आई एम जस्ट टेलिंग कि गाइडेंस और मेंटोर सबको चाहिए होते हैं. तो उस केस में आई बिलीव दैट बहुत गाइडेंस उसने मनीष से लिया है. सो एवरीबडी हैज़ अ मेंटोर. बट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द फैक्ट दैट अच्छा चाहे वो रणवीर हो या राज हो या कोई भी हो, अल्टीमेटली द फैक्ट इज कि ये जो एंटरटेनमेंट वाला सेक्शन है, क्यों I'll tell you it's not funny thing about YouTube. LinkedIn पे one of the most followed guy is Rahul Subramaniam. And his headline says demotivational speaker. People love his content भाई. वो अगर एक छोटा सा लाइन लिख के डालता है ना, उस लाइन पे घंटों में, बस 1 घंटे 2 घंटे में 10,000 से ऊपर लाइक्स आ जाते हैं. Okay. लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे एक स्टैंड अप कॉमेडियन क्या कर रहा है? अपूर्व गुप्ता हैज रिसेंटली स्टार्टेड मेकिंग हिज ओन ब्रांड ऑन लिंक्डइन एंड ही साइट्स हिमसेल्फ एज अ एंजल इन्वेस्टर. आई एम मोर देन अ कॉमेडियन, एंजल इन्वेस्टर. दैट्स हाउ ही इज पोजीशनिंग हिमसेल्फ. कहने का मतलब है कि अब वो प्लेटफॉर्म में डिफरेंशिएशन नहीं बचा है. Okay. हर प्लेटफॉर्म में हर कोई है. क्यों? इसका रीज़न ये है कि एक ह्यूमन है, एक ह्यूमन के अंदर सब कुछ है. ही वॉन्ट्स टू डू अ बिजनेस, ही वॉन्ट्स टू गेट एंटरटेन. एट अल्टीमेटली एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम इज बेसिकली वो ह्यूमन को ही चेज कर रहा है. तो अगर आप हाउ पीपल बिहेव, हाउ पीपल थिंक, अगर इसको मास्टर कर लो ना, आप हर एल्गोरिदम को बीट कर सकते हो. Got it. What do you think all the successful YouTubers have they studied algorithm? No. उनको पता है. मिस्टर बीस्ट ने कभी बैठ के एक बुक नहीं पढ़ा होगा. मेरे को नहीं लगता मिस्टर बीस्ट जब शुरू किया होगा तो उस टाइम पे एक गाइड बुक होगी कि YouTube शुरू कैसे करना है, हाउ टू YouTube, जो आज में भी अंकुर वारी को सिखा रहा है. Right. देयर वाज नो गाइड बुक. बट मिस्टर बीस्ट आज वन ऑफ द मोस्ट फॉलोड यूट्यूबर है, एज लाइक सब्सक्राइब्ड यूट्यूबर है. बट उसके साथ साथ ही इज अर्निंग अ हेल लॉट ऑफ अमाउंट बिकॉज उसको पता है how to gain that attention of the people. True. And I think YouTube might have studied a case study on. Exactly. Bhai, he's spending $5,000 to Right. $10,000 on a thumbnail. एक thumbnail में 5,000, जो चीज़ हम यहाँ पर $30 की बनवा सकते हैं, $15 की बनवा सकते हैं, उस पर $5,000 क्यों स्पेंड करता है? तो जब उसका मैंने वो टॉक देखा, उसने सिंपल सी बात बोली, वो जो एक thumbnail है ना, that will create a difference of millions of dollars की income for him. True. अगर वो थंबनेल अच्छा चला गया तो व्यूज मेरे 200 मिलियन ज़्यादा आ जाएंगे, और वो 200 मिलियन में कितने मिलियन मैं बनाऊंगा ये सोचो. आई डोंट वांट टू टेक रिस्क फॉर दैट थंबनेल. सो दिस इज द रीज़न आई फील कि हर पर्टिकुलर कंटेंट क्रिएशन का जो भी प्लेटफॉर्म है उसमें भी सब टाइप की ऑडियंस है. इंस्टाग्राम पे भी फनी कंटेंट भी चल रहा है और एजुकेशन कंटेंट भी चल रहा है. तो ऑडियंस हर जगह है. यू जस्ट हैव टू चेज द राइट ऑडियंस. दैट्स इट. Okay. So, I mean, I'll tell you. कंटेंट क्रिएशन की टॉप 3 थिंग्स इफ एनीबडी आस्क मी, राइट? तो सबसे पहले मैं बोलूँगा कि पहले टाइमिंग. लोग बोलते हैं कि ये टाइम पे पोस्ट करो, ये टाइम पे पोस्ट करो. आई थिंक टाइमिंग, मे बी योर हैशटैग्स, मे बी योर कीवर्ड्स, एवरीथिंग इज सेकेंडरी. एंड इवेंचुअली अब तो मुझे लग रहा है कि आधे प्लेटफॉर्म्स इसको अभी सेकेंडरी ही मान रहे हैं.
the king is going to be the relevance, right? आप कितना value add दे रहे हो, that's what is everybody talking about. But I have seen that maybe you have also faced in LinkedIn, right? And I have also seen on YouTube. If the particular person is hitting a like, why is he hitting a like? Because he genuinely loved the content. So if your content is really great, and if people are really able to, you know, there is some relevance out of it, कि मुझे ये देख के कुछ सीखने मिला, या मुझे ये देख के कुछ, you know, maybe my mental stress is gone, maybe I learned something, everything, this thing works faster. So there's a difference between organic growth and obviously paid growth, right? So organically आप अगर grow हो रहे हो, your audience will basically engage more. And I tell you, half of these people who are running their podcast, even me, I will tell you. Why? Because of the personal brand. Why? Because you need to generate leads out of it, right? So the golden rule of content from my end would be कि genuinely content अच्छा होना चाहिए. अगर content अच्छा नहीं है, you know, आप 100 दिन में 100 पोस्ट कर लो, you know, quantity बढ़ा दो, everything, you know. आप कैसे बताओगे कि वो genuinely content अच्छा होना चाहिए? मैं आपको ऐसे ऐसे myth break करने वाला हूँ अभी, Okay. जो आपको लगेगा कि हाउ इज दिस पॉसिबल. पहले आपके फर्स्ट पॉइंट पे आते, टाइमिंग. आपके हिसाब से फर्स्ट यू हैव टू, अभी इफ यू, आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टाग्राम राइट नाउ, ठीक है. इंस्टाग्राम पे जाते हैं, अपने ही प्रोफेशनल इनसाइट्स देखते हैं, वहाँ पर देखेंगे कि अच्छा मेरे को मंडे टू संडे के बीच में कब सबसे ज़्यादा ऑडियंस आ रही है और क्या टाइम पे आ रही है. जनरली फॉर एवरीबडी द ऑडियंस कम्स अराउंड, मेनली द ऑडियंस इज एक्टिव इन इंस्टाग्राम 6 से 9 तक. ठीक है, शाम को ये ले लेते हैं. आई नो अ गाय who has posted very recently, मतलब वो person has reached 200K. उस इंसान ने वीडियो रात को 12:06 पे पोस्ट की अप्रॉक्सीमेटली. Okay. जिस टाइम पे कौन ही देखेगा उस कंटेंट को. That content went viral. His viral pieces. That content is about Japan का एक कंपनी जहाँ पर उसके बारे में वो ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहे हैं. And the guy I'm talking about, he's from Mumbai. What he says, बाकी सारे लोग जितने कंटेंट बनाते हैं वो सारे एल्गोरिदम फॉलो करते हैं. वो बोलता है मैं एल्गोरिदम फॉलो नहीं करूंगा, मैं 60 सेकंड के जगह मैं 90 सेकंड 120 सेकंड की वीडियोस बनाऊंगा, मैं स्पेसिफिक टाइम पे पोस्ट नहीं करूंगा, मैं बहुत ही प्यारे प्यारे वैसे थंबनेल्स नहीं बनाऊंगा जैसे आप बना रहे. ही बिलीव्ड इन हिमसेल्फ. दिस गाय आई मेट इन हॉस्टल दिल्ली. आई एम टॉकिंग अबाउट कृष्णा राठी. Okay. The guy who changed my mindset a lot in 2020 and is still changing that. The point is, he gave me a perspective कि ज़रूरी नहीं है कि आपको वो वही चाल के साथ चलना. और इसका पर्सपेक्टिव मेरे को एक दिल्ली मेट्रो में मिला. मैं मेट्रो में जा रहा था, जाते आते जैसे ही मैं उतर के एक एस्केलेटर जा रही थी और बगल में सीढ़ी था. वो एस्केलेटर के लाइन पे पूरी भीड़ है और सीढ़ी खाली है. एक बार के लिए आई वॉज डाउटिंग माई सेल्फ कि इस सीढ़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना यार, मेरे को चढ़ना चाहिए कि नहीं चढ़ना चाहिए. बट देन व्हेन आई क्लाइम्ड, नॉर्मल था. एंड दिस इज समथिंग दैट हैज हैपेंड विद मी. अब डिफरेंस बताता हूँ. उस टाइम पे मेरे को ये सोच आया, बट वहीं पर एक लड़का खड़ा था जिसने इसी की वीडियो बना ली और उसने पोस्ट कर दिया रील बना के कि ये है जिंदगी, भीड़ वाला रास्ता और बिना भीड़ वाला रास्ता. वो वीडियो वायरल हो गया. जस्ट टेलिंग यू दैट कैसे लोग एक कंटेंट क्रिएशन जर्नी को आज के टाइम पे लेके जा सकते हैं. अब और दूसरी बात समझ लो, मेरे सामने मैंने लोगों को 2000 फॉलोअर से 1 मिलियन जाते हुए देखा है इंस्टाग्राम पे 2 महीने 3 महीने के अंदर. आई नो वेरियस सच अकाउंट्स. कैसे? जो वैल्यू की आपने बात की, वैल्यू आप दे रहे हैं, बट आपके ऑडियंस को कंसिस्टेंसी चाहिए. Okay. I can show you one channel which has reached maybe 500 to 600K जीरो से, और उसमें एक अच्छा थंबनेल नहीं लगा हुआ है. जिस प्रोडक्शन की आप बात करते हैं, कोई प्रोडक्शन में कोई भी आप जो बोलते हैं बी रोल्स, 0 बी रोल्स यूज्ड. Okay. एक सिर्फ कैप्शन है. एक लड़की है जो डुअल रोल प्ले कर रही है, जस्ट लाइक शरण ने जो ट्रेंड शुरू किया. Right. बट वो जो कंटेंट बोल रही है, दैट इज वेरी वैल्यूएबल. तो आप बोलते हैं प्रोडक्शन अच्छा करो तब वायरल होगा. नहीं. इफ योर कंटेंट हैज जेन्युइन वैल्यू, अगर उसमें आप कुछ ऐसा बता रहे हैं जो लोगों को रिलेटेबल लग रहा है, जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है. ब्रो, frankly speaking, money making is not a talent. Solving a real problem is a talent. वो आप सीख जाओ ना, पैसे अपने आप आ जाएंगे. आप जिस कंपनी में काम करते थे, हम जिस कंपनी में काम करते थे, आज के वक्त में आई वॉज वर्किंग विद बाइजूस, यू आर वर्किंग विद अपग्रेड. यू हैव फाउंड वन थिंग, डे एजुकेशन में जो वाइट स्पेस था, एजुकेशन सिस्टम खराब था, इन्होंने टैप किया, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की, वहाँ से पैसा बनाया.
एंड दे चूज अ मास सेक्टर. एजुकेशन तो सबको चाहिए. सो अंडरस्टैंड दिस थिंग. कंटेंट क्रिएशन, आज जो आप ऑर्गेनिक और पेड की बात कर रहे हो, दैट इज बेसिकली नथिंग बट द बेस्ट वे ऑफ मार्केटिंग टुडे, दैट इज कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग. ओके. आप बेसिकली अपने ही ऑडियंस को एजुकेट कर रहे हो, अवेयर कर रहे हो, एंड फिर उन्हीं को बेच रहे हो सटल वे में. ट्रू. दैट्स इट. हर किसी का बिजनेस और डिस्ट्रीब्यूशन वैसे ही चल रहा है. सो मार्केटिंग स्पेंड्स आज के टाइम पे इसीलिए बहुत ही कम हो गए. आप सही ऑडियंस पकड़िए, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, आराम से वहाँ पर आप अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी शुरू करिए, डिस्ट्रीब्यूशन चालू करिए और बेचिए. अब Makes sense. पेड भी करना है तो करिए, नो इश्यूज, बट पेड के बिना भी काम चलता है, ऐसा नहीं है. आई हैव नेवर डन अ पेड ad or something for myself, and I'm running a great business out of LinkedIn, so works. Nice, amazing. So before we go on your journey and your LinkedIn journey, I want to go back to what you said, consistency, right? I want to tell my audience consistency होता क्या है. मतलब content creation journey में what is consistency? Is it like रोज पोस्ट करना? Is it like weekly post करना? Is it monthly post करना? What exactly because I personally know, because obviously you have given me a very good heads up before, but I want to give this value add to all the people who are actually entering into content creation. क्योंकि आज हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अब डॉक्टर, लॉयर और ये सब बनना नहीं चाहते. They want to enter into content creation. Correct. And it's a compounding money which you get. Once No once you scale it up, you get the compounding money. So it's a very good career. So like a viewpoint on what is consistency. देखो यार, कंसिस्टेंसी लोग अभी भी सोचते हैं कि 7 दिन अगर पोस्ट करेंगे दैट इज कंसिस्टेंसी. ऐसा नहीं होता. कंसिस्टेंसी हर चीज़ में होनी चाहिए. पहली कंसिस्टेंसी चलो टाइम वाइज हो गई. आपकी ऑडियंस एक्सपेक्ट करिए कि ये हर दिन 9 बजे पोस्ट करेगा. मेंटल अलार्म जानते हो क्या होता है? सो कई बार, अभी जैसे आज मेरे को यहाँ पर आना था तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करने. सो जब मेरे को आना था, सो व्हाट आई फिगर्ड आउट इज आई सेट वन अलार्म जो कि था मेरे मोबाइल पे. बट जब मैं सोया, एट दैट टाइम मेंटली आई गॉट प्रिपेयर्ड कि मेरे को इस टाइम पे उठने का है. एंड विच इज बेसिकली आई हैव टू रीच एट 11 हियर, सो आई हैव टू maybe wake up at 9. Okay. Before 9 I woke up. That was a mental alarm. So what happens, how this mental alarm is used to, used for your audience is very simple. आप हर दिन 9 बजे पोस्ट डालो या 10 बजे पोस्ट डालो और मेंटेन करो वही टाइम. अच्छा. Your audience will get used to कि 9 बजे योगेश का कंटेंट आने वाला है. There will be a mental alarm always, and they will wait. Why? Because you're giving value. I have seen lot of LinkedIn creators, आज साल भर हो गए वो सेम टाइम पे ही पोस्ट डालते हैं और आदत हो गई. मेरे को पता है कि 4 बजे इसका पोस्ट आने वाला है और वो अच्छा वैल्यूएबल पोस्ट होगा, तो वो अब उसको अनाउंस करने की जरूरत नहीं है. दैट इज वन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी. सेकेंड है कितने दिन पोस्ट करना चाहिए. अगर आपने अपने ऑडियंस को बोला है कि मैं ऑल्टरनेटिव डे पोस्ट कर रहा हूँ, तो वो ऑल्टरनेटिव डे कमिटमेंट को पोस्ट करो. मीटिंग दैट कमिटमेंट इज कंसिस्टेंसी. Okay. अच्छा, क्यों पोस्ट करना चाहिए डेली ज्यादा? लोग बोलते 3x पोस्ट करो या 4x करो या 5x करो या 7x करो. क्यों? When you are posting every day, it's basically, what is a notification? It's basically an alarm set by someone else for you. Right. So you are notifying your audience that you exist. Makes sense. कि अगर आपको लिंक्डइन की ब्रांडिंग करानी है या आपको बिजनेस कोचिंग चाहिए तो हमसे लीजिए, मैं हूं. वहीं पर क्या हुआ, एक इंसान ने डिसीजन लिया और वो चाहता है बिजनेस कोचिंग लेना. आपकी वीडियो नहीं आई उसके सामने, उसने किसी और को पकड़ लिया. सो यू मिस दैट चांस व्हेन यू आर नॉट पोस्टिंग maybe 7x or something. That's the reason you should post daily. What I feel. अब और कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, which is called the branding consistency. आज के वक्त में when you are posting with a certain style, let's take an example of, I guess, Nikhil Kamath, the recent podcast that he started, WTF, which has become a sensational hit. Exactly. क्यों? पॉडकास्ट पहले भी चल रहे थे. एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि इतने बड़े मार्केट में अटेंशन कैसे ले. इतने पॉडकास्ट के बीच में अटेंशन लेना बहुत मुश्किल बात थी. कैसे ले पाया बंदा? इट्स वेरी सिंपल, दैट ही ट्राइड अ न्यू फॉर्मेट. एक राउंड टेबल पे बैठे, कोई स्क्रिप्ट नहीं है, लोग पानी वानी पी रहे हैं, मस्त आराम से बात कर रहे हैं. True. और वो बात करते करते, और नॉर्मल लोगों से बात नहीं हो रही है. वी आर हैविंग द मैवरिक्स ऑफ द इंडस्ट्री टॉक कैजुअली, विच जनरली डज नॉट हैपन, एंड नॉट वन मैवरिक. अभी देखो, ही इज स्टार्टिंग अ न्यू थिंग. बैंगलोर में एक्सप्लोर करने का है. आई विल बी सिटिंग इन अ कार विथ मी, 2 गेस्ट विल बी देयर, और वो पॉडकास्ट नहीं, रोडकास्ट हो रहा है अब. द पॉइंट इज दीज न्यू कॉन्सेप्ट्स इज व्हाट इज बेसिकली अट्रैक्टिंग द पब्लिक.
तो ये जो कंसिस्टेंसी, अभी देखो उसका ब्रांडिंग, व्हेन यू विल गो टू हिज पेज, वो ब्रांडिंग कंसिस्टेंट है. जब WTF है, WTF व्हाट द as is social media, Yeah. what the is entrepreneurship. क्यों है? The reason is very simple, because अब वो consistently लोगों को पता है कि WTF is एक नया टॉपिक आने वाला है. Right. That is also consistency. भाई सिर्फ टाइमिंग थोड़ी कंसिस्टेंसी होती है, वो तो हमें जिम में सिखा दिया गया, कंसिस्टेंट रहो लाइफ में कंसिस्टेंट रहो. इसी कारण से हम सोचने लग गए कि कंसिस्टेंसी वो है. Right. ठीक है. और कंसिस्टेंसी क्या है? हर रोज एक सर्टेन सिग्निफिकेंट ऑडियंस से अगर आप बात करोगे, अगर आप एक कंटेंट पिलर मेंटेन करोगे. सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, यू वांट टू रीच अ टारगेट ऑडियंस विच इज वर्किंग प्रोफेशनल, और आप पोस्ट डाल रहे हो किसके बारे में? आप पोस्ट डाल रहे हो ब्रांडिंग के बारे में, आप पोस्ट डाल रहे हो विमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में. क्यों? बस रैंडम मेरे को ख्याल आया कि शुगर कॉस्मेटिक्स के बारे में डालने का, या मैंने डाल दिया. पॉइंट इज, अगर एवरी डे यू विल टॉक अबाउट द पेन एंड डिजायर ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल, आप देखो वही ऑडियंस आप अट्रैक्ट करोगे. दिस इज कॉल्ड द कंसिस्टेंसी ऑफ कंटेंट पिलर्स. इसलिए Okay. कभी भी जब आप कंटेंट बनाओ, यू हैव टू हैव अ सर्टेन स्टेट ऑफ कंटेंट, मतलब सर्टेन नंबर ऑफ कंटेंट पिलर फॉर. अब ये कंटेंट पिलर आता कहाँ से? जब आप डिसाइड कर लेते हो कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन है, मीन्स होम यू वांट टू टारगेट. Target. तो पहले टारगेट डिसाइड करते हैं, फिर कंटेंट पिलर डिसाइड करते हैं, उसके बाद कंटेंट बनाते हैं. I want to add here. Yep. Before you know decide के target के पहले आप कौन सी चीजों में अच्छे हो. Because there are only two ways to do it. Either by experience or by gaining a skill, right? Correct. If you have experience, like we are coming from the same industries, 7 years down the line. Now when anybody talks about edtech, I know you and me will like talk a lot on edtech because we have gone through this journey when edtech was booming. So I'm very sure if you have experience and if you're able to target the same niche, you will grow faster. Correct. Right? And because experience speaks, right? And second is if you have upskilled with some skill, right? Let's say somebody in my team is very good with video editing and that person is actually creating a video about it कि मैं video editing कैसे करता हूँ. That person will also have a win. But if I bring a difference in this particular opinion of yours, Right. in a way that I was into business development Okay. for the past 5 years, I never talked about sales in my entire LinkedIn journey. And I learned a new skill, which is personal branding, and I sold that to public. So I remember one of the podcasts that happened between Ankur Warikoo and Utkarsh, a guy named Utkarsh. Yeah. So Utkarsh was a doctor who turned a content creator. So this opened my mind that right now it has become very easy to acquire skills. So there are students who come to me and ask के इस course में invest कर दे क्या, इस course में invest कर दे क्या. What I always say them is very simple thing कि YouTube पे सब कुछ है फ्री पे. आपको देखना आना चाहिए, आपको सर्च करना चाहिए. इवन सर्चिंग ऑन यूट्यूब और गूगल इज एन आर्ट. तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट दैट यश के हमेशा आपको जो चीज़ आप करते आए हो. मैं ना एक चीज़ से बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ. वो मेरी जर्नी की जब बात करेंगे आपको वो चीज़ समझ आएगी. मैं एक चीज़ से बोर हो जाता हूँ. तो सेट एग्जाम्पल मैं इस चीज़ का करना चाह रहा हूँ कि यू कैन अक्वायर अ न्यू स्किल एंड मोनेटाइज इट एनी टाइम. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो चीज़ सीख के रखो. मेरे को लगता है आपने जर्नी में भी तो आपने इन्वेस्टिंग शुरू किया अभी. True. वो तो नहीं एक्वायर किया आपने. True. No, I'll tell you why. People like you and me, right? Who are like भूखे हैं, knowledge के लिए भूखे हैं. Correct. Like we want to acquire knowledge and we want to actually monetize it, right? उन लोगों के लिए सबसे क्यों होता है उनके साथ? क्योंकि they are very good with sales. Correct. I tell you why. Because they are very good with people, obviously. They are very good with sales. They can sell anything they want, right? If you have acquired sales skill, you can do anything in the world, right? So that's why you and me both have a different niche altogether. We are coming from the same background. Correct. Now a different niche, but we acquired very fast. For a normal person, it will take 3 years, 4 years down the line, which we can do it in a year. Correct. Or maybe lesser than that, right? So this is the core of it. If I go to students now, right? पहले मैं अभी like परसों ही I was mentoring one of the student and the students from Bangalore. He is like 98 percentile and like great student with marks and all. One thing he asked, Yash, I want to be an investment banker. So I said, why? So he said, it's booming, it's like money making and everything. I was like, wow, great. But tell me one thing, right? How are you going to start it?
It's like, I'll do this, I'll do this, I'll do that. Then I'll tell you why. So I told him कि internship कर लो, यहाँ कर सकते हो, internship like practical experience gain करोगे तो सबसे better है. इसका question था कि मेरे को कौन hire करेगा, right? और क्यों hire करेगा? मैंने बोला this is where you are lacking. Sell yourself the best. And this is what the topic is, personal branding. Exactly. Yeah? And if you're good with your sales, if you're good with your selling yourself, right, people will hire you. And I told him, in fact, if you're going for, like, I told him he wants to be an investment banker. And I told him, if you want to, like, you are in 12th, just go towards first is if you, any VCs or any angel investors, right, are just giving you any type of work, go for it. Because that background will change you a lot, right? Correct. So, this is what I'm trying to say. People now in next generation are acquiring skills very fast. Skills लेके उनको बेचना नहीं आता अपने आप को. फिर पूछते हैं कि now what to do next. Correct. Then they change the skill, and that's where the consistency is broken. So the same thing, it's in the real life, consistency is also very important. So means you can say कि sales एक ऐसी skill है जो सबके पास होनी चाहिए. Yeah, That is very, very important. true. Also, with sales, there's one skill that, again, everybody, not skill basically, an attribute that everybody should discuss, that is confidence. Right. एक एग्जाम्पल बताते बहुत छोटी सी. बचपन में जब हम एक दुकान से सामान लेके आते थे, हम घर लेके जाते थे वो सामान, और उसके बाद मम्मी बोलती थी इसको चेंज करा के लेके आओ. पहली बार हम जाके खरीद के लेके आ गए और मम्मी बोल रही है नहीं अच्छा नहीं है, चेंज क्या, इसको वापस से करा दो. अब तुमको वापस करना है और वो शॉपकीपर को पैसे देने हैं. ये मैं भी रिलेट कर पाऊंगा और आप भी रिलेट कर पाओगे कि हमारी कितनी हालत खराब होती थी. अंकल को सामान वापस दे दिया बट अंकल इसके बदले कुछ ले लेंगे, वो पैसे वापस लेने में. व्हाट इज दैट? दैट इज बेसिकली अ मिस ऑफ कॉन्फिडेंस के इनसे कैसे बात करें. आज अगर आप शॉप पे जाओगे तो आप खुल के बोल दोगे ये चीज, राइट? पॉइंट इज आज यही बचपन से जो कंडीशनिंग हमारी रही है, द पॉइंट इज कि यही सेम स्किल, व्हेन यू एग्जाम्पल, if I'm going with my son or daughter today, I would go and teach the same thing कि कैसे अंकल से आप वो पैसे ले सकते हो. If you see Grant Cardone, he is basically teaching his children how to do sales when they are so young. उस बंदे के पास फैसिलिटी है तो वो प्राइवेट जेट में भी बैठा के सिखा रहा है. भाई उसके पास सारे पैसे. Why is he doing that? Because ultimately तुम्हारे पास पैसा है बट तुम्हारी लाइफ में फिर तुम क्या करोगे जब पैसा तुम्हारे पास है? दिन भर घूमते तो नहीं रहोगे. वन फाइन डे लाइक समबडी आस्क्ड मी ओवर अ कॉल के बहुत डीप क्वेश्चन था, मुझे लगा कि यार. सो द क्वेश्चन वाज के इफ यू हैव ऑल द मनी ऑफ लाइफ व्हाट आर यू गोना डू. मेरे को उस पॉइंट पे रियलाइज हुआ कि मैं सारी हसल तो पैसे के लिए कर रहा हूँ, एक अच्छी लाइफ के लिए कर रहा हूँ. जब मेरे पास पैसा ही आ गया, अनलिमिटेड मनी है, GTA चल रहा है, तुम चीट कोड डाल के कितने भी पैसे ला सकते हो भाई, तब क्या करोगे? फिर मैंने सोचा फिर मैंने ये सोचा कि सबसे अमीर इंसान हम किसको मानते आए हैं, कौन है नहीं, किसको मानते आए. तो दिमाग में नाम आया बिल गेट्स. फिर मैं सोचा बिल गेट्स क्या कर रहा है आजकल. नाउ ही इज इन्वॉल्व्ड इनटू ग्रेटर वर्क, क्लाइमेट चेंज है वो. आज हम भले उसको बोल देते हैं क्या चल रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में. वंस यू हैव ऑल द मनी ऑफ द वर्ल्ड, वंस यू हैव दैट, जब पैसे नहीं होते ना लोग पैसे के पीछे भागते, जब पैसे आ जाएंगे ना मोह खत्म हो जाएगा इस पैसे का. तो दिस इज व्हाट आई फेल्ट ओवर टाइम कि जो सेल्स आप बोल लो या कोई भी फील्ड बोल लो, अल्टीमेटली भाग हमें इसी चीज के, अल्टीमेट गोल है पैसा. True. और हमने सेल्स में पैसा बनाया है इसलिए हमें पता है ये बात. True. I mean, I totally agree with it. And I think this relates back to someone who has told कि there are 3 stages of life. पहला आप अपने लिए कमा रहे हो, दूसरा सोसाइटी के लिए, तीसरा you're doing for the greater one, like the whole world, right? So, and I think it was quoted by Raj also in one of his podcast. But yeah, I mean, okay, so I have another question now. And not really a question because you told a very good point. Aaj, we are going back to Gurukul. Now, what I meant here is people are not going to school colleges. I was so shocked, and in specifically Mumbai और दिल्ली में एक नया कल्चर आ रहा है कि स्टूडेंट्स आर एक्चुअली अर्निंग आफ्टर 11th एंड दे आर सेल्फ इंडिपेंडेंट, और लोग बहुत अच्छी तरह कमा रहे हैं. मतलब क्यों कमा रहे हैं? व्हेन आई गो बैक टू द होल साइकोलॉजी ऑफ इट, आई सॉ देयर पेरेंट्स आर सो कूल. अब वो नहीं, मतलब थिंग्स आर चेंजिंग, राइट? अब वो ये नहीं बोल रहे कि पढ़ के मार्क्स ला के पैसा कमा या जॉब ले. अब ये बोल रहे हैं, एंड इवन आई टेल यू, आई फॉलो दिस गाय नोन एज विशेन.
from Yeah. Mind Valley, Okay. I right? know. He has created a school of thought leaders. And he told once on the stage, because I'm coming from Isaac background, he's a Isaacer himself. So he told one thing very beautiful. In next 5 years, 5-7 years, there will be a time where people will not send their students to schools. Mhm. They will send to the thought leaders directly. Okay. Train under the thought leaders. So let's say if you want to, if you get a chance to maybe on LinkedIn, I don't know who is doing best in LinkedIn, but on YouTube, let's say like that. If I tell you that you get a chance to work with Mr. Beast or Alex Ormonzi, right? And you are like a 6-year-old kid, would you like be shocked कि कहाँ भेज रहे, क्यों भेज रहे, किसके साथ भेज रहे, तभी लगेगा. But when you now know कि this is these are the people who are going to mentor me and something like that, it's going to be the beautiful thing, right? So, Agreed. So I think we're going back to Gurukul. You're going to a subject matter expert, learning that, and you're learning at a very early stage, and you're making money. And you rightly said, at the end बात किस पे आ जाती है? पैसे. पैसे पे. That's when you decide. Abhi, like there's a lot of when you talked about the fact. Abhi, I guess you were talking about this one where content creation जब हम कर रहे हैं. So content creation के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है कि कंसिस्टेंसी की आपने बात की. कंटेंट क्रिएशन हम क्यों करें? वाई एवरीबडी सीइंग समवन एंड स्टार्टिंग. राज को देख के लोगों को नहीं पता है कि राज कितना कमा रहा है, लोगों को नहीं पता रणवीर कितना कमा रहा है, फेमस है तो कमा रहे. पीपल आर स्टिल नॉट एबल टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन लाइक दैट फेम एंड मनी बिट. ठीक है. अगेन नॉट टू डिस्क्लोज बट अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स आज भी है जो नहीं पैसा बना पा रहे. सो आई हैव हैड इंसिडेंट्स ऑन लिंक्डइन जहाँ पर people have asked me कि how can you claim this much amount of money at this less followers. I'm like authority की बात है और आप अगर clear हैं. So one quote that was there that you should chase clarity more than like you should be more clear than clever is something that I loved and that has ruled my life in 2023. So every year I live with a new quote, by the way. Like this is something about me. That's great. Every year I set a quote as a benchmark. What is the quote for 2024? Finding right now, like still finding that what is that quote. I'm just living by the last quote itself, but like I've been 1 year where I have lived with the quote like success comes from experience and experience comes from bad experiences, which was said by Sandeep Maheshwari. So because I was having a lot of bad experiences and I realized, okay, it is okay, that's fine. The next year, again, the role models keeps on changing. Then one fine day I found that, okay, this quote is okay, but let's go ahead. Then I'm not able to achieve something. Then the quote that ruled that year was, if you will do what you have done, you will get what you have gotten. That was why Tony Robbins. Then again, I realized, okay, this has worked for this year. Let's go to another. I was not very good with networking. How should I be with people? Whom should I be with? A lot of confusion. Then Jim Rohn says that you're the average of the 5 people you spend most of your time with. So I believe, why do we say these people thought leaders? Because this one thought, one line they have created, that thought will change everybody's life. You don't need to get mentored also sometimes. Right. It is just that भाई उनके वो thought को तुम सुन लोगे, तुम्हारा दिमाग ऐसे ब्लास्ट हो जाएगा कि यार कल ही पढ़ा था यार, यू डोंट हैव लेस टाइम, यू हैव लेस फोकस. सही बात है. टाइम तो 24 घंटे जो मेरे पास भी है, वो 24 घंटे यहाँ जिस शहर में हम बैठे, वहाँ के सबसे अमीर आदमी के पास भी है भाई. मुकेश अंबानी के पास भी सेम टाइम है, बट ही इज अर्निंग हेल लॉट ऑफ मनी. इट इज जस्ट दैट फोकस मिसिंग है बस. Wow. दिक्कत है. Good take backs from me. I mean, I will also now. I think how do you basically observe these thought leaders? I want to know your pattern. Okay, now when you're giving such references, right? ये references कैसे आ रहे? It's because you're reading a lot. You are actually observing their work a lot. What exactly? So I have a hack. Okay. हैक ये है, मैं बहुत लेजी इंसान हूँ. सो बिल गेट्स का एक कोट था बहुत पहले कि इफ यू वांट टू गेट योर वर्क डन, गिव इट टू अ लेजी गाय, एंड वो थोड़ा सा इजी होगा, वो वर्क जल्दी हो जाएगा. मेरे को लगता था क्या बकवास बोल रहा है. टिल आई ग्रू अप एंड देन रियलाइज दैट ही वाज टेलिंग करेक्ट. सो आई एम वेरी प्रोएक्टिव. तो मेरे को बोलोगे ट्रैवल करने सब कुछ ठीक है, बट आई कैन नॉट डीप वर्क फॉर 4-5-6 घंटे. तो मेरे को ये चीज़ समझ आया कि मैं बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाता हूँ एट टाइम्स. ठीक है, बट जब मैं काम कर रहा हूँ तो इट विल बी वेरी प्रोडक्टिव. Okay. तो क्या हुआ, आई वॉन्टेड टू फाइंड अ वे विच इज़ अ लेजी प्रोडक्टिविटी. जो कॉन्सेप्ट पॉसिबल ही नहीं. मैंने कहा ऐसा क्या होगा कि कुछ ऐसा करूँ जो लेजी है, मज़ा भी आ रहा है
और प्रोडक्टिव भी है। तो क्या किया मैंने, सो आई वेंट टू इंस्टाग्राम, आई क्रिएटेड अ फेक अकाउंट ऑफ माइन, Okay. नॉट लाइक एंजल प्रिया टू फॉलो पीपल, बट आई क्रिएटेड वन अकाउंट। देन आई हैक्ड इनटू द इंस्टाग्राम एल्गोरिदम। हाउ? सो मैंने क्या किया, रील्स, अच्छे अच्छे जो रील्स होते हैं पॉडकास्ट वाले, उसको सेव करना और इंटरेस्टेड मार्क करना चालू किया, और जितने फालतू रील आ रहे थे सबको नॉट इंटरेस्टेड कर दिया। आज अगर मैं अपना मोबाइल आपको अभी यहाँ पर लाइव भी दिखाऊंगा, सो यू विल बी एबल टू सी दैट उस पर्टिकुलर चैनल पे कोई फालतू रील नहीं आती है। यानी Wow. कि इफ़ यू विल सी द नॉर्मल पेजेस विच द नॉर्मल अकाउंट दैट आई हैव, उसमें आपको डांस करते हुए भी लोग मिलेंगे, गाते हुए भी मिलेंगे, बनारस काशी की वीडियो भी मिलेगी। दैट इज मी, रियल मी। Exactly. एंड देयर इज अ मी दैट आई वांट टू बिकम, दैट इज दैट अनदर अकाउंट, जिसको जब मैं खोलूंगा ना, उसको आपको 10 रील आप कर लो या 100 रील कर लो, आपको वो हर 5 सेकेंड जो आप, या 10 सेकेंड या 30 सेकेंड आप उस रील पे बिता रहे हो, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। बिकॉज उसमें वैसी रील आती ही नहीं है, और वो 30 सेकेंड में ऐसी बात बोल के निकल जाता है। हाउ डू यू नो, हाउ आई नो अबाउट एलेक्स होमोजी और एनीवन आउट देयर, उसमें जितने थॉट लीडर्स आ रहे हैं ना, उस रील्स में आ रहे हैं, और बेस्ट थॉट लीडर्स आ रहे हैं। उसको ऑप्टिमाइज कर दिया मैंने ऐसे। एंड नाउ व्हाट इज इट हेल्पिंग मीन? फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टेंट मोटिवेशन। Nice. मैं आपको अगर दिखा दूँ, आप इंस्टेंटली मोटिवेट हो जाओगे। सेकंड, इट इज़ गिविंग अ क्लियर कट वे। 30 सेकंड वो इंसान ऐसे रोड मैप दे जा रहा है जो शायद आपकी ज़िंदगी उस टाइम पे बदल के रख देगा। तीसरी चीज़, यू आर एबल टू गेट कॉन्टेंट आइडियाज विच आई एम पुटिंग आउट ऑन लिंक्डइन नेक्स्ट डे। Wow. सो ऐसे प्रोडक्टिव है कि वो जो 5 मिनट लेट के मैं रील देख रहा हूँ ना बॉस, उस रील में मेरे तीनों काम हो रहे हैं। मोटिवेशन आ रहा है, मेरे को रोड मैप मिल रहा है, और उसको मैं रीपर्पस कर रहा हूँ। Nice. सिंपल। और ये हर प्लेटफॉर्म पे वर्क करता है। आप लिंक्डइन पे एक फेक अकाउंट बना लो, उसको ऑप्टिमाइज कर दो, अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज हो जाएगा। एल्गोरिथम को हैक करना बहुत इजी है बस। हम लोग हैक क्यों नहीं कर पा रहे? बिकॉज हमें समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली वो एल्गोरिथम काम कैसे कर रहा है। True. एज सिंपल एज दैट। So let's talk about something which is very personal to us. Let's talk about our stories, right? I will start with you, right? Give me a timeline of your story in a very fast. क्योंकि मुझे पता है आधे लोगों को पॉडकास्ट में गेस्ट की स्टोरीज नहीं जाननी होती है। उनको उनसे वैल्यू चाहिए और वैल्यू चाहिए बस, और But कुछ वो नहीं चाहिए। स्टोरी अगर बहुत खतरनाक हो तो जानने में मजा आएगा। मेरी Yeah. कुछ ऐसी खतरनाक स्टोरी है। Let's listen to it. सो खतरनाक स्टोरी ऐसी है, आई वाज अ वेरी एवरेज गाय फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरे को फेम चाहिए था बीइंग एन एवरेज गाय, जो कि नहीं मिल सकता था। Okay. सो क्लास 8 में आई रियलाइज दैट आई हैव टू गेट फेमस। सो देयर आर 2 ways टू गेट फेमस, या तो सबसे अच्छे बनो या सबसे बुरे बनो। अच्छा नहीं बन पाया, अकेडमिक्स अच्छी नहीं हो पाई, तो आई जॉइन द वर्स्ट ग्रुप ऑफ माई क्लास। Okay. क्लास 8 में मेरे प्रिंसिपल ने आके पूरे क्लास के सामने मुझे तमाचा मारा, एंड मैं फेमस हो गया। until I realized that was being infamous. And then योगेश नाम हो गया हर जगह वगैरह. Then in class 9 when I went, तो मेरे को थोड़ा सा एक मेंटोर क्या गया, मेरे सर ने बताया कि नहीं ऐसे नहीं होता, तो he groomed me a bit and then I became good in English. तब तक इंग्लिश वगैरह सब बहुत खराब थी. वहाँ से जब उठा तो उसके बाद स्कूल में आई बिकेम अ टॉपर. दैट वाज आल्सो अ रीज़न बिकॉज अपनी गर्लफ्रेंड, मतलब होने वाली गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना था. शी वाज अ टॉपर एंड मैं एवरेज बंदा, तो वो गैप बहुत ज़्यादा हो जा रहा था. मतलब हमारे बेंच के बीच में गैप नहीं था, वो मेरे पीछे बैठती थी, बट हमारे अकेडमिक्स में बहुत ज़्यादा गैप था, ड्यू टू विच वो पहुँच नहीं पा रहे थे वहाँ. सो शी वॉज अ साइंस का पूरा फ्रीक एंड आई वॉज लाइक कॉमर्स. तो फिर आई इम्प्रूव माई सेल्फ एंड देन इवेंचुअली वी गॉट इन टू रिलेशनशिप. सो दिस हैपेंड. सो क्लास 10 से ही अपन का वो सब चल रहा है. उसके बाद मोटिवेशन, हाँ वो मोटिवेशन था. फिर एक ऐसा इंसिडेंट भी हुआ था जहाँ पर यू नो थोड़ा सा होता है कि हसल टसल चालू हो गया एंड आई वाज लाइक ठीक है क्लास 12 में टॉप करना है, वहाँ भी टॉप कर गया, सब हो गया. तो अभी एकेडमिक्स में अच्छे हो गए, बट पता नहीं है लाइफ में क्या करना है, फिगर आउट नहीं हो पा रहा है. पापा बोलते अभी मारवाड़ी फैमिली में व्हाट हैपेंस, यू लाइक सीए कर लो, सीए कर लो. अब मेरे को सीए नहीं करने का था, ठीक है. सो आई टोल्ड कि पापा आई विल गो टू कैलकाटा. आई बिलोंग फ्रॉम वेरी स्मॉल विलेज कॉल्ड जामुडिया, विच इज इन वेस्ट बंगाल, जिसको फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मैप पे. सो इतना मान लेते हैं कि कोलकाता से 200 किलोमीटर दूर है. सो आई वाज लाइक पापा कोलकाता जाते सब कुछ चेंज हो जाएगा वहाँ पे. सो पापा ने बोला कि ठीक है जाओ, आई विल इन्वेस्ट सम मनी. सो मिडिल क्लास से थे अपन, तो भेजा सब कुछ हुआ. कोलकाता जाके आई वेंट टू गोइंका कॉलेज ऑफ कॉमर्स, स्टार्ट स्टडिंग देयर. मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कुछ होने से रहा मेरा, मैं कॉलेज वॉलेज जाने लायक इंसान हूँ नहीं. और फर्स्ट बार जाते ही मेरी रैगिंग वैगिंग भी हो गई थी फर्स्ट ईयर में, भागना वागना पड़ा था कॉलेज छोड़ के. देन व्हाट द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ आई ट्राई टू डू अ स्टार्टअप इवेंट कंपनी, फेल्ड. ठीक है,
फेल्ड, पैसे वापस देने पड़े, रणविजय को बुला रहे थे, बहुत कुछ हुआ, फेल्ड. सेकेंड ईयर स्टार्टेड अनदर कंपनी कॉल्ड ऑन प्ले न्यूज़. ठीक है, आज भी उसकी वेबसाइट लाइव है. उसमें हम भुवन बाम, आशीष चंचलानी, हर्ष बेनीवाल उसके लिए लिखते थे. सो वी वेर इन पर्सनली कनेक्टेड विद दोज पीपल. इट वॉज अ न्यूज़ पोर्टल फॉर देम. तो उनकी जो न्यूज़ बाहर बाद में आएगी वो हम पहले भेज देते थे. सो दैट्स हाउ. सो आई वॉज वन ऑफ द कंटेंट क्रिएटर देयर. तो मेरा काम था लिखना विकना भी, और मेरा काम था बिजनेस को डेवलप करना. बट कुछ नहीं पता मेरे को बिजनेस डेवलपमेंट होता क्या है. मेरे को चीफ बिजनेस ऑफिसर बना दिया. मेरे को खुद नहीं पता क्या होता है ये. और सेकंड ईयर में चीफ बिजनेस ऑफिसर हूँ मैं. मतलब क्या भाई, क्या चल रहा है ये. सो दिस वॉज सेकेंड ईयर ऑफ माई लाइफ. एंड लाइक ठीक है, डन. तो वो भी फेल हो गया. 6 महीने बाद वो भी बंद. ठीक है. एंड द गाय वॉज वर्किंग विद हिम ही वॉज अ क्रेजी गाय एट दैट टाइम. थर्ड ईयर में रियलाइज्ड, अब वही होता है कि लड़की का हाथ तो होता ही एक. तो उसने बोला मेरी बंदी ने कि आप एनजीओ ज्वाइन कर लो. देन आई रियलाइज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन ऑफ माई लाइफ. थ्रू एनजीओ एंटरिंग एनी पर्टिकुलर डोमेन या कॉलेज और बिग इंस्टीट्यूशन बिकेम वेरी इजी. आप एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बन के आप IIMs में जाओ, आपको 4 चीज़ों का जवाब देना पड़ेगा. यू बिकम एन एनजीओ एंड गो देयर. इट इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल. Wow. सो आई जॉइन ब्लड कनेक्ट एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर यूजिंग. अगर आप अभी भी हाल फिलहाल में देखोगे तो बहुत लोग यही काम कर रहे हैं. एनजीओ की आड़ में बहुत, मतलब साथ ही साथ एक सोशल वर्क खोल दिए हैं सो डैट उनको वो ऑर्गेनाइजेशन का एक्सेस मिल जाए. सो आई रियलाइज आई जॉइन ब्लड कनेक्ट एंड वहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप्स के IIM एंड IITs में जाने का एक्सपोजर मिल गया. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई यूज्ड टू, एक मेरी हैबिट रही है हमेशा से, मैं कॉन्टैक्ट ले लेता हूँ और कॉन्टैक्ट लेके क्या करता हूँ कि उसमें सब कुछ सेव करता हूँ. जैसे आपका नाम भी सेव रहेगा, तो आप कहाँ पर रहते हो, क्या करते हो, क्या आपका पॉडकास्ट का नाम है, सब सेव रहता है. Okay. सो वो हैबिट था शुरू से. सो वो सेव कर लिया. ऐसे करके IIMs में भी काफ़ी कॉन्टैक्ट बन गए. देन इवेंचुअली वहाँ पर भी थर्ड ईयर होने लग गया, कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में. पापा का फ़ोन आता है कि बेटा मैं पैसे नहीं भेज रहा और ख़त्म. एंड आई वॉज इन, तब तक पैसे पापा भेज रहे थे ना, वो तो नहीं रियलाइज था कि ये क्या होता है. ही स्टॉप सेंडिंग मनी. नाउ व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड अगेन, इट्स ऑन लाइव, आई एम सेइंग, आई स्टार्टेड ब्लैकिंग IPL टिकट्स कैलकाटा में. डंडे खाए पुलिस के एस्प्लेनेड में, और ऑनलाइन टिकट उठाता देता. भाई रेंट लेना है, मतलब ख़राब पर्पस के लिए नहीं. सेकेंडली आप देखते हो इवेंट्स में वो ब्रांड का शर्ट पहन के लोग एक एक दिन के लिए काम करते रहते हैं, वो 500 रुपये में. आई हैव डन दैट व्हेन आई वाज इन कॉलेज टू अर्न मनी. तब मेरे को पता चला पैसे कैसे कमाते हैं. ठीक है, थर्ड ईयर में ये सब किया. सो एट दैट टाइम अभी करेंट फाउंडर ऑफ टैग मैंगो, दिव्यांशु दमानी, हुज इन मुंबई. Right. सो दिव्यांशु मेरे को काफ़ी अच्छा लगा बंदा, कि यार बड़ा क्रेजी बंदा है. तो दिव्यांशु को मैंने लिखना चालू किया इन लिंक्डइन पे, हाई आई वांट टू मीट यू. 1.5 महीने लग गए टू क्रैक हिम. एंड देन ही इन्वाइटेड मी टू हिज को वर्किंग स्पेस. पहली जॉब मैंने दिव्यांशु के साथ की. एंड वी स्केल्ड अ पेज फ्रॉम 50,000 to 5,50,000. सोच नेटवर्क उस पेज का नाम था. सो दैट वॉज माई फर्स्ट जॉब दैट आई डिड विद दिव्यांशु, फॉर विच आई वॉज गेटिंग पेड. देन आई मेड एन एक्सीडेंट जिसमें मेरी आंखों पे चोट लगी. सो वी वर सेलिब्रेटिंग. शैम्पेन का कॉर्क खुलता है, मेरी आंखों में जाके घुसता है और मेरी आंखें फूट जाती हैं. Wow. Like seriously. Like the left eye, it's like stitched. It's a corneal tear inside. 6 स्टिचेस है उसके अंदर. ठीक है. दिव्यांशु अपनी ऑडी निकालता है, मेरे को लेके जाता है हॉस्पिटल. एंड आई वाज लाइक ओह डैम, क्या हो रहा है. ठीक है, पहुंचा, वो इंसिडेंट हुआ. तो उस इंसिडेंट के दौरान ही सो ऑल्सो इन दैट इंसिडेंट द वर्स्ट पार्ट वॉज कि मेरी जो कॉर्नियल टीयर हुई उसमें मेरे ग्लासेस भी थे. तो मेरे ग्लासेस को अंदर ही डाल के सी दिया उन्होंने. सो फर्स्ट ऑपरेशन वॉज अ रॉन्ग ऑपरेशन. And I told my dad that it's a wrong operation. Then second time I was operated again. So this was a big setback for me. Hilarious. So I could not like do any computer वगैरह कुछ for 2-3 महीने. So दिव्यांशु के साथ जॉब छोड़ना पड़ा. That was the time Tag Mango का नाम हमने डिसाइड कर लिया था. I'm talking about that time Tag Mango was decided. Okay. So I had to leave. Then I joined Byju's. Byju's भी again like that was an experience I have had. Like I just gave a interview, crack हो गया. Byju's में 4 साल काम किया. 4 से 4.5 साल काम. बट टू बी लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग सब कुछ सही था. आई लर्नड अ लॉट. आई अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. बट मेंटल हेल्थ वॉज अफेक्टेड. It was so affected. I cannot blame Byju's totally for it. There was a lot of different circumstances. But in 2021, July 25, I contemplated suicide. And that was the time, 25th July को 2021 में, I went and jumped in a dam in Ranchi.
And because I had two mobiles, one got switched on because I wrote a letter to my dad with all the details of यहाँ म्यूचुअल फंड है, मेरे जाने के बाद निकाल लीजिएगा. They were able to track me and they rescued me from there. I went to recently to LPU to give a speech. पहली बार ज़िंदगी में मैंने वो फ़ोटो दिखाई अपनी जहाँ पर मैं पुलिस वैन में बैठा हुआ हूँ. I came home and I tried to again commit suicide multiple times. I had 100 BP का गोली. I tried hangman rope. Almost 6 महीने तक मैंने 100 से ऊपर बार ट्राई किया ये करने का. And when I was doing that, I was in such a bad mental health condition. मतलब मेरे पेरेंट्स को समझ नहीं आ रहा था मेरे को क्या हो गया. I was just wanting to end my life. क्यों? क्योंकि अब सबको पता चल चुका था, मेरे ऑफिस को पता चल चुका था, बाइजूस को पता चल चुका था कि इसने ऐसा कुछ किया है. अब बाइजूस प्रमोशन देगा नहीं, जो भी कंडीशन था. तो अगेन माई मैनेजर वॉज सुपर सपोर्टिव. आई विल ऑलवेज थैंक हिम फॉर दैट. ही डिड नॉट रिमूव मी फ्रॉम द कंपनी, ही गेव मी अनदर चांस. बाइजूस क्विट करने से पहले जनवरी में वापस बाइजूस रीजॉइन करता हूँ. मतलब मैं स्टैंड बाय पे था. मैंने वापस से चालू किया काम. I recovered myself. जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में I earned incentives. I proved myself that I'm back on track. That was a bad phase of my life. My manager supported me definitely. But then I realized that वो एक phase था, वो चला गया. I became very stronger after that phase, but मेरे को promotion ये नहीं दे रहे. So then I had to quit Byju's. After quitting Byju's, I was joining another job. But वही होता है ना, एक धब्बा लग जाता है आपके ऊपर. तो मैं कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट उस कंपनी में मैंने 3 बार इंटरव्यू दिया. तीनों जगह से ऑलमोस्ट सिलेक्शन का आ गया. दे हैड अ बैकग्राउंड चेक. दे फाउंड आउट दैट आई कमिटेड सुसाइड और वो कंपनी ने मेरे को रिजेक्ट कर दिया. मेरे को बाद में पता चला थ्रू सम फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस कि ये रीज़न था रिजेक्ट करने का. मैंने बोला ठीक है दोस्त, हमारा वक्त भी आएगा. देन आई स्टार्टेड गोइंग लाइक कि चलो ट्रैवल करते, पैसे अभी है. आई वेंट ऑन 100 days इंडिया टूर. 22nd डे वहाँ पे आई वाज ट्रैवलिंग टू कोची टू मुन्नार. मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल हो गए. एंड व्हेन द कार ब्रेक्स फेल्ड, माई कार टॉपल्ड. इट वॉज इन अ डाउन हिल 40 आई गेस नॉट 45 डिग्री बट अगैन 60-70 डिग्री ऐसे करके. एंड आई कुड नॉट स्टॉप द कार एंड वो कार टॉपल हो गई. 4 लोग थे कार में, मैं भी था. तीनों बच गए, तीनों बाहर निकले एकदम सेफली. बट आई लॉस्ट माई रिंग फिंगर देयर. दिस इज November 9, 2022. जस्ट 1 year ago ऑलमोस्ट. सो ये जो स्टोरीज रही मेरे लाइफ की कॉन्स्टेंटली, जो मैंने बोला एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस, आई हैव रियलाइज दैट मैंने क्या क्या नहीं किया. टिकट्स ब्लैक की है, मैंने इतने एक्सीडेंट्स झेले हैं, मेंटल हेल्थ सब तो जी चुका हूँ यार. अपने एज के हिसाब से बहुत वो एक्सपीरियंसेस जी लिए. सो दिस इज़ अ वेरी वनरेबल पार्ट ऑफ माई लाइफ, बट दिस इज़ वॉट हैज़ मेड मी इनटू व्हाट आई एम. आई हैव रियलाइज्ड कि लाइफ में सिर्फ वो पैसे वैसे हर कुछ नहीं होता है. देन आई स्टार्टेड सीकिंग कि हाँ, लोगों के साथ रहो, घूमो फिरो, ट्रैवल करो. और इसके बाद भी मैं रुका नहीं, फिर मैं ट्रैवल करना वापस शुरू कर दिया. अभी भी चीज़ें होती हैं, लॉस भी होता है. जो मेंटल हेल्थ का ऐसा है कि अब वो फेज़ में कभी नहीं जाता, बट देयर आर टाइम्स यू विल फील लाइक अच्छा ये क्यों काम करे, चलो बैठ जाते, एक जॉब ही ज्वाइन कर लेते हैं. बट नो, वी फाइट बैक दैट थॉट एंड कम बैक. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि हो सकता है पब्लिक को पर्सनल स्टोरी किसी की सुनना पसंद नहीं हो, बट जब उसमें इतनी रोलर कोस्टर राइड हो, दिस इज़ अ परमानेंट लॉस, दिस फिंगर विल नेवर कम बैक. सो व्हेन पीपल से, और लोग ये कहते हैं ना, लोग डर गए थे कि यार ट्रैवल मत करो, ट्रैवल की वजह से हुआ. तो जस्ट उनको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बाजू वाले बेड में जो बंदा था वो अपने बाइक धो रहा था एंड उसकी 4 उंगली कट गई थी चेन के अंदर, मेरे बाजू वाले बेड में. तो इट्स नॉट दैट कि आपका कुछ भी जो हो रहा है वो लिखा है, वो होना था, वो हो गया. बट आपको अपना जो काम जो भी आप करते हो वो करते रहना चाहिए. इफ़ यू फील दैट ओके यू आर गुड विद समथिंग, यू वांट टू एक्सपेरिमेंट, यू हैव गॉट वन लाइफ. दैट कॉन्सेप्ट इज रियली गुड. यू ओनली लिव वंस, लिव बाय दैट कॉन्सेप्ट भाई. कोई दिक्कत नहीं है, ना सोचो इतना. एड वैल्यू टू पीपल लाइफ, यू विल. आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हो चुकी है. APJ अब्दुल कलाम, डेल कार्नेगी, और कितने ही लोग आप बात कर लीजिए जिनकी बुक्स हम आज तक पढ़ते हैं, जिनके बारे में हम आज तक बात करते हैं. क्यों? वो मर तो गए, बट उन्होंने ऐसी इम्पैक्ट क्रिएट की ना लोगों के दिमाग में. तो अभी एक ही गोल है लाइफ का कि वो इम्पैक्ट क्रिएट करके जाना है जब भी जाऊं. दैट इज द ओनली थिंग. पैसे साथ तो लेके नहीं जा पाऊंगा. Wow. सो दिस वाज माय स्टोरी. This is really crazy. I mean, breathtaking. Do you believe in destiny? Because now let's say, what if, right? अगर you could like
सुसाइड अटेम्प्ट्स नहीं होते, राइट? डू यू थिंक दैट यू वुड बी सो स्ट्रांग टुडे मेंटली? नॉट एट ऑल. मतलब Not आई at all. बिलीव इन डेस्टिनी, बट अब इसको इस एंगल से समझिए. सो वी टॉक अबाउट आइदर पाम रीडिंग और वी टॉक अबाउट कुंडली, राइट? कुंडली क्या चीज़ से बनती है? आपके नाम, आप कितने बजे पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, ये सब डिटेल्स है. उसमें आपका रेखा का कुछ भी रोल नहीं है. सो मेरे को घर में बोला गया था ये सब काम मत करना, किसी को मत दिखाना. सो रिसेंटली आई वेंट टू अयोध्या, आई गेस जस्ट बिफोर 22nd ओनली, मैं पहले गया था. तो वहाँ पर देयर वाज वन ऑफ द पंडित जी, वो फ्रेंड्स थे, तो उससे बात हो रही थी कि अच्छा मैंने बोला कि आप मेरा हाथ वाथ देख दो थोड़ा, बताओ यार नहीं चल रही अच्छा है तो क्या सीन है, क्या करने का है. तो वे लाइक नो आई विल नॉट सी योर हैंड्स, पाम रीडिंग मैं नहीं करता. मैंने बोला क्यों नहीं करता? बोले कि मैं बिलीव नहीं करता इस पर. सो दैट वॉज एक्चुअली आई वॉज टेस्टिंग हिम. आई टेल यू वाई. I don't believe in palm reading. The reason is that this guy called Nick Vujicic, if you know, who does not have hands. So he does not have two hands. दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है. It's a very rare condition of some person where they don't have both, right? He's today a swimmer as well. He's someone who क्या बोलते हैं, as a motivational speaker, as a author. If you type his name on Google, you'll be able to know about him. So जब मेरे को वो आँख वाला इंसिडेंट हुआ था ना, तो मेरी मम्मी ने हॉस्पिटल में, जब मैं व्हील चेयर में था, तो एक बात बोली थी कि यार सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है, तुम्हारी किस्मत ही खराब. मैंने बोला तो यार तकदीर और किस्मत तो उसकी भी है जिसके हाथ नहीं है. सो देन आई स्टार्टेड बिलीविंग देयर आर पीपल हु डज नॉट हैव हैंड. तो ये हैंड रीडिंग तो पहला वैलिड नहीं है, इसको तो मैंने क्रॉस ही कर दिया उस दिन, कि क्योंकि अगर इसी से मेरी लाइफ लाइन डिसाइडेड है तो जो नहीं है उसके पास तो ये फिर है ही नहीं, उस तो अभी मर जाना चाहिए. नंबर 1. सेकेंड, कुंडली. I'll tell you what happened with me, ये destined वाला. So I was in Pune. So मेरे को ये दिखाने की आदत नहीं, but I was one of the mall in Pune जहाँ पर मेरे को मन किया कि दिखाते हैं. So it was back in March, May 2023 I'm talking about. So पुणे में मैं जाता हूँ, पंडित जी को बोलता हूँ कुंडली. तो मम्मी को फ़ोन करता हूँ, पूछता हूँ मम्मी क्या टाइम पे हुआ, सब कुछ बताओ. So नाम वाम लिया, उसने कुंडली निकाली. He told me all the things and अब मेरे को डर लग रहा था कुछ नेगेटिव नहीं बोलते. तो उसने बोला कि ऑलमोस्ट नवंबर दिसंबर में यू विल हैव अ टर्न अराउंड. ओके, ठीक है, ये 2023, फिर आपको पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना पड़ेगा. सो ऑलमोस्ट उसके बाद ही अगर मैं बताऊं, सो जुलाई से ही आई स्टार्टेड वर्किंग विद अ वेरी डिफरेंट वे. आई हैड अ क्रेजी 6 months इन टर्म्स ऑफ अर्निंग एंड फेम एंड एवरीथिंग. एंड अभी दिसंबर से आई नो वेरी वेल कि अब मेरे को पता है कि आई हैव अ डायरेक्शन कि मैं किधर जा रहा हूँ. एंड थिंग्स हैव बीन वेरी डिफरेंट. तो यहाँ से मेरे को थोड़ा सा बिलीव होना चालू हुआ. और अब जब कनेक्टिंग द डॉट्स की बात करते हैं, उसको छोड़ो, वो इंसिडेंट लो जब मैंने दिव्यांशु के साथ मेरा इंसिडेंट हुआ जहाँ पे आँख फूटी सबसे पहले, वहाँ से बाइजूस ज्वाइन हुई. बाइजूस में मेंटल हेल्थ का ये इशू आया, तब जाके मैंने ये कंपनी खुद की शुरू की. इनफैक्ट अगर मैं जिस कंपनी में अप्लाई किया उसमें रिजेक्ट नहीं होता 3 बार, तो आज मेरी खुद की कंपनी नहीं होती. ट्रू. सो रिजेक्शन इज एक्चुअली रीडायरेक्शन टू समथिंग बेटर. Well said. Super well said. That is very important to see as a perspective. कोई भी रिजेक्शन, इट कैन बी इन रिलेशनशिप ऑल्सो, इफ यू आर गेटिंग रिजेक्टेड बिकॉज यू आर गेटिंग रीडायरेक्टेड टू समथिंग बेटर. इसका सिंपल एग्जाम्पल है, कई बार आप देखोगे शादी में सगाई हो चुकी है और फिर वो रिश्ता टूट जाता है, और ये बहुत कॉमन हो गया है दीज डेज. इट हैज हैपेंड इन माई फैमिली ऑल्सो. सो और मैंने जब वो चीज़ होते हुए देखा, उसके बाद जो पर्सन उसका लाइफ पार्टनर बना, दैट इज मच 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 बेटर लाइफ पार्टनर. So whatever happens for the good, this is completely true. There is a different plan for you. सब कुछ है. अब जब आप बात करोगे मैंने आज तक जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, फिर गलत किया, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट इन डेप्थ टॉपिक है. जहाँ पर देर आर कर्माज ऑफ योर लास्ट लाइफ एंड एवरीथिंग दैट काउंट्स. वॉट एवर यू डू, छोटी छोटी चीज़ें वो काउंट होता है. सो आई पर्सनली बिलीव यू जस्ट फोकस ऑन डूइंग गुड फॉर द सोसाइटी. एंड जो छोटी मोटी चीज़ें होगी, अगर मैंने जब मेरी उंगली कटी ना, मैंने ब्लेम नहीं किया. दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई डिड नॉट ब्लेम गॉड. ठीक है, नाउ आई हैव स्टॉप्ड ब्लेमिंग, आई हैव स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ कि हाँ मेरी गलती है जिस कारण से ये हुआ, अभी बेटर अब काम करते हैं. सो दिस इज समथिंग आई बिलीव इन केस ऑफ डेस्टिनी. सो आई विल टेल यू, आई मीन रिसेंटली, राइट, बहुत ही रिसेंटली आई हैड अ heated argument with somebody saying कि you know मूर्ति पे बिलीव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. वेरी वेरी like a stupid argument, but again, you know, people who believe, they actually, you know, do not believe in the murti itself. They believe in the belief
that other people are also, it's more like energy, right? So it's all about energy. So वही, after having a debate, right, we come to a conclusion कि it's all about energy. It was a very small topic but stretched it out, okay? And yeah, energies, right? If you are really positive towards and I know for a fact now you have a vision, you have a direction that you want to help the students. You are helping many entrepreneurs, right? When you have that direction, life will have a turnaround again and it will come back to you. Maybe अभी आपने जैसे बोला कि मम्मी ने बोला कि तेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा, right? Maybe it's because the most strongest human being having the strongest, I mean difficult journey, the difficult journey. Correct. Right? So maybe you have a difficult journey, but you are super strong. And because I know for a fact you have the ability to impact thousands and millions tomorrow. But that's completely true. But there's a point when you say about destiny also. कि you say कि destiny ये destined है. I'll tell you something. We also talk about a word called manifestation. How this manifestation works. Let's understand that. हम जो भी सोच रहे हैं, that's basically a frequency that is being sent in this universe. वो जो हम बोलते रहते खुद को, जो बोलते हैं लोग पॉजिटिव एफर्मेशन करो, there's a reason. Whatever you speak, whatever you think is a frequency already sent to universe. एंड अगर आप नेगेटिव, वो जो आप सबकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं या आप बात करते हैं कि आप जो सोचते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, ये ट्रू है ना? आई एम नॉट, मतलब आई हैव सीन दिस हैपनिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स. अगर आप किसी चीज़ के बारे में ड्रीम नहीं करोगे, मेरे को टेडेक्स पे जाना है, मैं टेडेक्स के बारे में सोचूंगा ही नहीं, मैं एफर्ट नहीं डालूंगा, मैं अपने आप को प्रोग्राम वैसे नहीं करूंगा, टेडेक्स खुद से चल के नहीं आएगा. देयर कैन बी टाइम्स, और अगर आप भी नहीं कर रहे हो, चलो मैं बोलता हूँ आप नहीं मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लिए, कोई आपके लिए कर रहा होगा. ये लेसन मेरे को तब मिला जब मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर गया. मैं अपने लिए प्रे नहीं करता, मेरे को प्रे करने की आदत नहीं थी, मैं भगवान के पास बैठ के कभी प्रे नहीं करता था. बट माई मॉम ऑलरेडी हैड दैट ऑलवेज. तो जब भी मैं घर अच्छा रिजल्ट लेके आता ना, मेरी मम्मी कहती, देख मैंने सुबह सुबह भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया था, प्रे किया था. It is not always what you think about yourself. It is also what people are thinking for you as well. Exactly. कि वो आपको, मेरे को सबसे बड़ी लेसन यही मिली कि अगर लोग आपके लिए मैनिफेस्ट करें, मेरी माँ मेरे बाप अगर मेरे लिए मैनिफेस्ट करें मेरे पास अच्छी लाइफ हो, तो उनकी भी वो पॉजिटिव एनर्जी मेरे को लगती है. तो दैट इज व्हाट आई हैव सीन कि मेरे घर में मैं बहुत पूजा नहीं करता, बट आज मेरे ऊपर जितनी चीजें टली है, द रीजन इज माई मॉम एंड डैड, बिकॉज दे डू पूजा. मैं अपने लिए कभी नहीं मांगता दोस्त. आई एम टेलिंग यू, मैंने कभी ऐसा नहीं हुआ कि मस्त भगवान जी के सामने बैठ के हर रोज पूजा कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ. इट डज नॉट हैपन. बट मेरे को पता है, मेरी मॉम, मेरी डैड, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा जब वो बैठती हैं तो मेरे लिए ज्यादा मांगती होंगी. एंड दैट इज द रीजन टुडे आई हैव सेफ. तो ये एक जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन मेरे को समझ आया है कि डेस्टिन्ड है, वो होगा, बट देयर आर पीपल हु आर मैनिफेस्टिंग सर्टेन थिंग्स फॉर यू. इट कैन बी योर पेरेंट्स एज वेल. Wow. Great. So money, let's talk on money, right? So it is also believed that आपके डेस्टिनी में जितना पैसा लिखा है, या तो आपको जल्दी मिलेगा या आपको मिलेगा, but you don't know the timing of it. Correct. Right? Because there are so many people, they are like कि हम इतना घिस रहे हैं, जॉब जा रहे हैं, there is so much of efforts we are putting, but still if they are in comparison कि ये ज़्यादा कमा रहा है, if not that also, कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे like 10 crore, 50 crores, 100 crores, whatever your manifest. Typically, I'll tell you that I have also seen this. I've seen my family that if you really, really work towards impacting others' life, right? And as you said, the blessing comes in. जो journey है आपकी, कि अगर वो लिखा है कि 34, 36 years में होना है, पैसा 30, whatever age, वो कम हो जाती है. It will happen. So that's something which I have observed. If people are wishing good for you and people are actually saying कि नहीं ये बंदे को आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अगर उसकी डेस्टिनी में 8 साल बाद लिखा है, वो कम हो जाती है. हाँ, होती है. आप जो चीज़, आप पहले गोल बना लो. आप ऐसे भी नॉर्मल कर सकते हो कि आप एक गोल बना लो कि आप नेक्स्ट 10 साल में क्या अचीव करना चाहते हो, और उसको 1 साल में अचीव करने की कोशिश करो. Just try doing that. Like you make the 10-year goal and then try to achieve that in 1 year. You will not reach the goal. 110%, मतलब चांसेस ज़्यादा यही है कि आप वो 10 साल के गोल पे नहीं पहुंचोगे, बट आपको पता चलेगा शायद जो काम करने में आपको 10 साल लगते हैं, अब वो 2 साल 3 साल में आपका कंप्लीट हो जाएगा. True. And that is why it is said that we underestimate
what we can do in 10 years and we overestimate what we can do in 1 year. And this has been said because अब मैं क्या करता हूँ ना, जब ये बोला गया ये चीज़, तो अभी एक और कॉन्सेप्ट इसी के बिहाइंड जो मैंने अभी बताया वो आया कि अगर आप ओवर एस्टिमेट करोगे ना, करने के बाद अपने आप को आप पुश करोगे तो वो चीज़ होगी. मेरे केस में मनी, जिस चीज़ की आपने बात की, वो कमाने का, जैसे इनफैक्ट अगर मैं अपनी जर्नी की एक झलक आपको दूंगा कि जब मैं नहीं कमा पाता, फर्स्ट 6 months वाज ऑलमोस्ट नो अर्निंग फॉर मी इन लिंक्डइन. ओके. ठीक है. उसके बाद ना मैंने एक ऐसी स्टेप ली जिस स्टेप के बाद पैसे आने चालू हुए. और वो स्टेप क्या थी? सो व्हेन आई वाज इन जॉब देयर यूज्ड टू बी अ मैनेजर हु यूज्ड टू कॉल, उठना है बेटा, आना है ऑफिस, पता है प्रेशर है, डर है, इसीलिए हम जा रहे हैं. अगर हमारा मैनेजर स्ट्रिक्ट नहीं होता तो हम नहीं जाते. द पॉइंट इज कि वी नो समबडी. अब यहाँ पर क्या प्रेशर है? ना मम्मी उठाएगी, ना पापा उठाएंगे, ना आप खुद को उठाओगे. आपको पता है कि आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको खुद करना है. आई टुक द वेरी रफ डिसीजन और टफ डिसीजन एज वेल ऑफ माई लाइफ. मैंने गाड़ी खरीद ली बिना पैसे हुए. मतलब आई हैड मनी सेविंग्स पहले का, बट दैट वॉज नॉट अर्निंग डायरेक्टली लिंक्डइन का. उस टाइम पे आए थे पैसे, एक सर्टेन हद तक आए थे, तो मैंने क्या किया, गाड़ी खरीद ली. अब मेरे को पता है कि गाड़ी की EMI जाएगी 16,000-17 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये गाड़ी का तेल का खर्चा, 25,000 यहाँ पर बन गया. कुछ करो या ना करो, ये पैसे हमको बैंक को देने होंगे. आई एम अ die hard believer of the fact that when you are setting money goals, first of all write down the expenses you want to do, which nobody does. मैंने इतने लोगों से बात कर लिया, सब बोलते हैं कि नहीं पहले गोल बनाओ कि कितने करोड़ रुपए कमाने. आप आज जाके अपना आप खुद कर लो जाके, यश के आप जाके लिख लो कि मेरे को इस साल 1 करोड़ रुपए कमाने. आपको कल देखो आपको मोटिवेशन रहेगा ही नहीं. क्यों? आपको पता ही नहीं वो 1 करोड़ का आप करोगे क्या. क्लियर ही नहीं है ना आपको. जब आपको क्लियर हो गया, सो आई सेट माई गोल स्टार्टिंग में कि मेरे को 5 लाख रुपए कमाने जुलाई, अगस्त, सितंबर. आई मेड 6 लाख रुपये. मैंने गोल को डबल कर दिया, 10 लाख कमाने, मैंने ट्रिपल कमाया. एंड दिस लिटरली हैपेंड जस्ट बिकॉज अब मैंने अपना प्रेशर डालना चालू किया. मेरे को लगा ठीक है इतने पैसे कम करे, ट्रैवल शुरू कर दिया कि लेट्स ट्रैवल में पैसे खर्च होंगे, लेट्स इंक्रीज द एक्सपेंसेस. जब आप अपने एक्सपेंसेस पहले से लिख सकते हो, तब क्या होता है, आपका माइंड प्रोग्राम हो जाता है कि 20 लाख का खर्चा तो यार योगेश ने इस साल लिख लिया है. अब आप क्या करोगे, आप प्लान करोगे कि 40-60 लाख रुपए, 40 लाख रुपए या 80 लाख रुपए कैसे कमाए. दिस इज द साइकोलॉजी दैट वन शुड डू. और ये आपको कोई भी, आप कितने से बड़े फाइनेंस वाले के पास चल रहे, वो नहीं बताएगा बिकॉज दे हैव नेवर ट्राइड दिस कॉन्सेप्ट. बट आज तक मैंने जिसको ये बताया है सबके लिए वर्क किया है कि आप अपने पहले एक्सपेंसेस लिखिए, आपको क्लियर रहेगा कि वो पैसे आप क्यों कमाना चाहते हैं. इनफैक्ट आप एक्सपेंसेस नहीं भी है तो आप अपनी मम्मी के लिए एक गोल्ड चेन लेना चाहते हैं 2.5 लाख रुपए का, आप अपने पापा को एक 10 लाख की गाड़ी देना चाहते हैं, आप लिख लीजिए. आप देखिए उसके बाद आपकी एबिलिटी टू अर्न दैट मनी विल इंक्रीज बिकॉज नाउ यू हैव अ पर्सनल कनेक्ट टू द गोल इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग मॉनेटरी गोल. यू आर अ ब्रदर फ्रॉम अनदर वर्ल्ड. यू नो व्हाई? Why? I usually tell my team also, and I usually wherever I go, right? And there are reels which I've made about it. If you really want to, you know, be wealthy, right? Definitely, many people does this. कि expenses जब भी आप business भी चालू करते हैं, and I'm very sure you will connect to this. जब business चालू करोगे, people around you will say कि भाई खर्चा कम कर, खर्चा कम कर, खर्चा कम कर. The reverse thing was, मैं income बढ़ाने का सोचूं ना. Correct. So focus on your income rather than expense. Write it down what your obviously, you know, your costs are, but focus on increasing the income. Exactly. Your expense will anyways, you know, get minus and subtracted from it. So focus more on generating income, and this is where an entrepreneur wins. So if you are focusing more on income, and eventually my team is hustling towards today also, right? और जिधर भी मैंने you know, whatever entrepreneurs I have invested in, I've told them very clearly, if you're not focused on income, you know, you are not getting the money ahead. Correct. Simple, right? So focus on income. और वो बचपन से सिखाया गया ना हमें, बचपन से सिखाया गया है जितने चादर है उतना ही पैर फैलाओ. Right. Nobody said us के चादर बड़ा कर लो. And the reason is कि हमको शुरू से पैसे पेड़ पे नहीं उगते.
सो व्हेन आई टीच लिंक्डइन टू पीपल, तो उसमें एक पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि व्हेन यू गिव पोलराइज थॉट, यानी कि एक ऐसा ओपिनियन जो लोगों से डिफरेंट है, वही फेमस होती है। आज आप राज शमानी की इतनी बार कोट कर रहे हो, रणवीर को कोट कर रहे हो, आप क्यों राज शमानी को कोट कर रहे हो? बिकॉज उसने कुछ ऐसी लाइन बोल दी जो लाइन हिट कर गई आपको। तो मैं सिखाता हूँ लोगों को ऐसी लाइनें लिखी कैसी जाती है। सो जब मैं सिखाता हूँ तो मैं एक बात बोलता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट लीजिए जो लोग बिलीव कर रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को ऑल्टर कर दीजिए। सो वन ऑफ माई क्लाइंट वॉज इनटू फाइनेंस, वेल्थ मैनेजमेंट एंड ऑल। तो मैंने बोला कि सबसे बड़ी बात वेल्थ मैनेजमेंट में ये बोला जाता है कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, हमारे माँ बाप हमेशा यही सिखाते आए, तो उसको थोड़ा सा ऑल्टर करिए। तो ऑल्टर करके नेक्स्ट डे आया, ही सेड दैट मनी ग्रोज ऑन ट्री बट इट ग्रोज ऑन द ट्री ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस। सेम कॉन्सेप्ट ऑल्टर्ड इन अ डिफरेंट वे। Right. तो लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ। कहने का मतलब वही है यश यहाँ पर कि आपके वर्ड्स ना बहुत पावरफुल है। इसका एक बहुत अच्छा टोस्ट मास्टर का स्पीच भी है, इफ़ यू गो एंड चेक आउट ऑन इंटरनेट, जहाँ पर एक बंदा आता है एज अ टोस्ट मास्टर। आपके वर्ड्स कितने पावरफुल है वो बता रहा हूँ। वो आता है एज अ टोस्ट मास्टर। तो टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल में पता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमको पब्लिक स्पीकिंग वगैरह की ट्रेनिंग दी जाती है। सो ही वॉज गिविंग ए स्पीच। तो वो आता है, वो ऐसा करके सिगरेट लाइट करता है। लाइट क्या करता है, मतलब सिगरेट ऐसे मुंह पे लगाता है और ऐसे ऑडियंस को देखता है कि अच्छा आप वाई आर यू गेजिंग एट मी, ऐसे बोलता है ऑडियंस को कि आई एम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट लाइटिंग इट। सेकेंडली, क्या आपको पता है कि डायबिटीज से 3 गुना ज़्यादा लोग मरते हैं रादर देन सिगरेट पीने के, ठीक है? Okay. और ऐसे करके 2-4 कॉन्सेप्ट वो सिगरेट्स के बारे में बता देता है। एंड लास्ट में बोलता है, बाय द वे आई मेड दिस ऑन द स्टेज, लाइक आई जस्ट मेड दिस अप, दिस वॉज नॉट रियल फैक्ट, बट जिस कॉन्फिडेंस से उसने बोला, एक बार के लिए लोगों ने ये बिलीव कर लिया। एक्चुअली ही ट्राइड डूइंग द सेम विद हिज फ्रेंड्स, ही सेड, एंड उसके 2 फ्रेंड ने बिलीव कर लिया कि मेरे को सिगरेट पीना शुरू कर देना चाहिए। एंड दिस इज द, अगर आप लिखोगे मोस्ट फेमस स्पीच इन टोस्ट मास्टर इंटरनेशनल, इसकी स्पीच आएगी, 11-12 मिनट की है। सो पॉइंट इज व्हाट आई वांट टू से यू कि आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ऐसे लोगों के अराउंड रहें जो पैसे की बात करें। आप नहीं देखोगे कि मुकेश अंबानी नॉर्मल लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा है। वॉरेन बफेट के साथ लंच करने का भी एक अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ता है। Right. वाई? इफ यू आर हैंगिंग आउट विद रिच पीपल, आप हर समय पैसे की ये सब चीज़ों की बात करेंगे तो उससे यू विल गेट एंड लर्न। दैट्स व्हाई दिस पॉडकास्ट इज हैपनिंग। दैट्स व्हाई आप देखो निखिल कामत भी जब बैठता है, वो ऐसे ऐसे लोगों के साथ बैठता है जिसको धंधा आता है, एंड दैट इज व्हाई दोस पॉडकास्ट आर बिकमिंग फेमस। True. वाओ फोक्स, इफ यू हैव स्टेड टिल नाउ, मुझे पता है कि आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मेरे कंटेंट से वैल्यू आ रही है, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर कि आपको मेरे कंटेंट से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी है। आई विल डेफिनेटली वर्क टूवर्ड्स इट। बट आपको ये स्टोरी सुन के कैसा लगा? जब मैंने ये स्टोरी पहली बार सुनी थी, इट वॉज रियली गूज़बम्प्स। आई रियली फेल्ट इमोशंस इन मी, एंड यू नो व्हाई? बिकॉज दिस स्टोरी इज जस्ट नॉट इंस्पायरिंग, इट एक्चुअली टेल्स अस लाइफ में जितना भी अंधेरा हो, but there is one उम्मीद, hope, which actually gives us the reason to live, reason to enjoy the life. योगेश ने मुझे एक्चुअली सिखाया है कि अब लाइफ जीनी कैसे है। मैं उनका इंस्टाग्राम फॉलो कर रहा हूँ, लिंक्डइन फॉलो कर रहा हूँ। आई जेन्युइनली कनेक्ट विथ हिम, एंड आई नो फॉर अ फैक्ट दिस गाय इज इंस्पायरिंग एवरी सिंगल डे। उन्होंने मल्टीपल सुसाइड अटेम्प्ट्स किए, मल्टीपल टाइम्स देयर वर लाइफ ट्रेजेडीज, ही हैज लॉस्ट हिज फिंगर, स्टिल he has that that energy, he has that positivity to make sure that everybody he connects is actually genuine, and he really works for the community, for his people. So yeah, I know that during my intro I told you about the LinkedIn course, and you guys are equally excited about it. I'm bringing you a part 2 for this. Stay tuned next Wednesday, और आपको LinkedIn के बारे में end to end पता चल जाएगा, I promise you. And if you really like my content, please subscribe me and also share it to someone who may need it. See you next week.